हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो इस वीडियो में हम देखने वाले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिक क्राइटेरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर अवर फोर्थ मॉडल, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एंड इस मॉडल के कंट्रीब्यूशन के लिए, लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके पहले दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वर डन एंड दीज आर एक्चुअली these are de Broglie wavelength and Heisenberg uncertainty principle. So let's see these two important development, and then we can, in the next video we will see the quantum mechanical model. So here we can say first, that is de Broglie wavelength. So de Broglie, what he said was कि जस्ट लाइक रेडिएशन, जैसे रेडिएशन होते हैं उनके पास डुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वेव नेचर और अदर कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल नेचर। इन दैट सेम मैनर मैटर शुड ऑल्सो हैव द डुअल नेचर, और जो कि उन्होंने प्रूव किया। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर, जो कि एक्चुअली एक एटम से बने होते हैं, बहुत सारे एटम से बने होते हैं, और वो एटम इन टर्न जो है इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। मीन्स इन शॉर्ट डी ब्रॉगली वाज सेइंग कि व्हेन वी से that the radiations have dual characteristics, similarly electron should also have dual characteristic. And for that he said that whenever there is a charged particle, whenever there is a particle in motion, it will have the dual characteristic. और उसका wavelength जो है इन्होंने relation दिया, that lambda is equal to h upon p, which is linear momentum, or it is also written as h upon m into v. So this is the formula which was given by de Broglie in order to explain the radiation or the waves which is coming from the matter, or you can say which is coming from the electron. ठीक है, so this was the concept which was given by de Broglie, one of the very important concept which will lead to our next model, that is quantum mechanical model. And de Broglie said that every object in motion will have the wave nature, and let's say the wavelength associated with the electron or any other subatomic particle can be calculated experimentally. So this was the concept which was given by de Broglie. Now let's see the second one, which is nothing but Heisenberg uncertainty principle. So what he said was कि whenever a Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg was the one who analyzed, who observed that let's say whenever there is a very fast moving object, कोई भी ऐसा बहुत ही फास्ट मूविंग सब्सटेंसेज होंगे तो उनमें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजिशन एज वेल एज द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. So then he gave his uncertainty principle that said it is impossible to calculate, or it is impossible to find out the exact position as well as the exact momentum of a highly moving particle. So Heisenberg uncertainty principle states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. So this is Heisenberg uncertainty principle, and mathematically it can be given as delta x, which is the difference, or let's say it is the uncertainty in the position, and delta p, which is uncertainty in the momentum. It should always be greater than equal to h upon 4 pi. Now we know that p can written as m into v. So here we can say, and mass of the electron is always going to be constant. So here we can see that delta x into, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा v और मल्टीप्लाइड बाय जो m है उसको हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, which is h upon 4 pi m. So these are our two important formulas for Heisenberg uncertainty principle. कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे जो कंटिन्यूसली मूविंग स्टेट में है विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, so at that time it is impossible to calculate simultaneously the position as well as the momentum of that particular particle. ठीक है, so then he contradicted, and according to Bohr's model, that electrons are revolving continuously and they are determining an orbit. But Heisenberg said that it is not possible at all. कि जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं, that means what we are saying that we know the position as well as we know the momentum or the velocity which with the electron is moving, और जिसकी वजह से हमको एक प्रॉपर ऑर्बिट का स्ट्रक्चर मिल पाता है. And instead what Heisenberg said was that instead of having a precise statement about the position and the momentum of electron, we can replace the statement with probability. मतलब कि एक uncertainty or the probability thing can be replaced not with the exact values.
सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से इट इज द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस बाय प्रोबेबिलिटी. दैट मीन्स कि प्रिसाइज वाला वैल्यू हमारा कभी नहीं मिल सकता जब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सच अ हाई वेलोसिटी. हमेशा उस टाइम रॉन्ग वैल्यू मिलेगा एंड वी कैन गेट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोमेंटम एंड द पोजिशन एंड दैट विल गिव यू प्रोजेक्शन अबाउट द ऑर्बिट. And this is actually that led to the development of quantum mechanical model. So with these two important development which was done after Bohr's model and before quantum mechanical model, and after that we will see the quantum mechanical model. Quantum mechanical model, yes, you heard it right. ये हमारा सब चौथा मॉडल है ऑफ atomic structure and this one is the most important atomic model because this is accepted till now with a lot of properties we'll be discussing. So let's get started with the chapter. So सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं quantum mechanical model. And this was initial foundation was given by Schrödinger. वो हम अभी आगे देखते हैं. Now classical before starting with quantum mechanical model which is based on quantum mechanics. पहले हम देख लेते हैं classical mechanics which was given by Newton, which was based on Newton's law of motion. एंड एक्चुअली अगर हम देखें क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल वॉज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो उनको डायरेक्टली विजिबल होता है. बट यही अगर हम क्लासिकल मॉडल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में लगाएंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, तो क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल विल फेल. And the real reason is classical mechanics never considered dual characteristic of matter, and because of that it is not applicable to atomic or microscopic substances. So that is why we have a separate branch of science which is called as quantum mechanics, which deals with dual behavior of matter. So here we will be discussing the quantum mechanics which is based on the idea of wave motion. The fundamental equation of the wave motion was given by Schrödinger, hence it is called as Schrödinger equation. And let's see our first equation, that is a Schrödinger's equation, and this is actually H psi is equal to E psi. So this is our Schrödinger equation where यहाँ पर हम लिख सकते हैं that where H is Hamiltonian constant, E is total energy, let's write E is ठीक है total energy, and psi is wave function. This is the equation which laid the foundation for quantum mechanics which is given by Schrödinger. And to the fun fact, Schrödinger को ये equation के लिए he got the Nobel Prize also. So let's see what are the terms in Schrödinger equation. First is H cap जिसको हम कहते हैं Hamiltonian operator. Then E is total energy. Psi is actually a wave function जो कि हम आगे देखेंगे. First of all let's see जब हम E की बात करते हैं that is energy. It is actually total energy or sum of energy of kinetic energy, then energy due to repulsion, let's say repulsive energy, then energy due to force of attraction. ये ऐसे सारे चीज़ों का the energy which will get that is called as total energy. And the third part is wave function which is actually dependent upon three values which is n, l एंड m. सो हमारे ये तीन वैल्यू पे हमारा वेव फंक्शन डिपेंडेंट है. ये तीनों जो वैल्यूज है n, l एंड m, दीज आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर जो हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी कवर करने वाले हैं. सो अभी वेव फंक्शन जो है इट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट इज दैट द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. ये एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका वैल्यू सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पोजिशन पे डिपेंड करेगा जो एटम के अंदर प्रेजेंट है. एंड इनफैक्ट कि हमको अगर एटम के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो, अगर वहाँ पर उसका प्रोबेबिलिटी चेक करना है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे से प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इट कैन बी गिवन बाय साई स्क्वायर. So here we can say mod of psi square will give you the probability of finding the electron inside the atom. So that is why wave function is important. In quantum mechanical model हम कभी भी exact value नहीं कहते, instead we always say it in the terms of probability. And if this quantum mechanical model is applied to hydrogen atom, so it gave a satisfactory, in fact successful proof for all the aspect of a hydrogen atom.
So that is why quantum mechanical model was the one which proved or which gave successful explanation to all the terms, all the aspect required for the hydrogen atom. Now स्कॉडिंगर इक्वेशन को अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने के लिए. मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम इन द सेंस कि ऐसे कोई भी एटम जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. Now, with the help of some modern computers and the calculation, it was seen कि जो भी हमारे ऑर्बिटल प्रेजेंट है other than hydrogen atom, it is almost similar, but उसमें जो एक मेन डिफरेंस है that is because of contraction of the orbitals because of higher nuclear charge. Because जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे and if the protons are increasing it will increase the nuclear charge onto the orbitals और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो closer to the nucleus it will be found little bit closer and because of that there will be little bit contraction in their atomic orbitals. On the other hand, orbitals like hydrogen and hydrogen-like species whose energy depends only on the quantum number n, the energy of the orbital in a multi-electronic atom depends on quantum number of n as well as L. So इस तरीके से we can show the Schrödinger equation which can be applicable to hydrogen successfully and to hydrogen-like atom successfully, and to the other multi-electronic atom it becomes little bit difficult for the calculation. So this was the Schrödinger equation. Now in the note point you can see some of the like few points are mentioned for important features of quantum mechanical models of atom. ठीक है, so you can just go through it. It is written in very easy language. आपको वो read करने से easily समझ में आ जाएगा. Now let's move to our next topic which is orbitals and quantum numbers. So now let's see one of the basic and one of the important part of quantum mechanical model, that is quantum numbers. So actually we can have like 4 different type of quantum numbers which are n, l, m and s. एंड ऑल ऑफ दिस लाइक जो भी हमारे कंजिक्यूटिव नेक्स्ट वाले जो भी क्वांटम नंबर्स होंगे इट विल डिपेंड अपॉन इट्स प्रीवियस वैल्यूज. फॉर एग्जांपल n के पहले कुछ नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, बट जैसे ही l आएगा इसका वैल्यू जो होगा वो n के ऊपर डिपेंड करेगा. फिर जैसे ही m आएगा इट्स वैल्यू विल डिपेंड अपॉन l और s का वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n. सो इन दिस मैनर लाइक क्वांटम नंबर्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वांटम नंबर. Now the importance of quantum number is it will give you the exact position of it will give you the position of an electron inside the atom. So that is why we use this quantum number. Now let's see the first quantum number which is nothing but principal quantum number. So we can write like principal quantum number and it is given by small m and it states that और ये represent ये करता है that it represent the number of shell ऑफ द इलेक्ट्रॉन. कि मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी गिवन इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से शेल में प्रेजेंट है इनसाइड द एटम. शेल इन द सेंस कि लेट्स से अगर कोई भी हम एक एटम बनाते हैं तो सो इनसाइड दिस एटम देयर कैन बी मेनी सर्कुलर पाथ और इन पाथ को हम कहते हैं शेल्स. ठीक है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल ओनली गिव यू द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है. एंड इट्स वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर the value of n is always equal to 1, 2, 3 and it will go on up to infinite because inside an atom we can have infinite number of shells और ये value जो होगा हमेशा एक positive integer values होंगे. So that is why it is starting from 1 and it will go up to infinite. So ये हो गया हमारा सबसे पहला information about the position of electron. Now second is it is azimuthal. It is azimuthal quantum number and it is given by small l. Now small l हमको ये बताता है कि अगर हमको एक बार जब शेल पता चल जाएगा, लेट्स से हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में प्रेजेंट है तो सेकेंड शेल में भी कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है दैट कैन बी गिवन बाय azimuthal quantum number. अभी हम देखते हैं क्या होता है. सो पहले लिख लेते हैं लाइक azimuthal quantum number gives information about orbit of an electron, for example, and the values of L is always L is equal to 0 to n minus 1. So ये सारे रेंज ऑफ वैल्यूज होंगे बट ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन जो होगा इन सब में से सिर्फ एक ही वैल्यू में प्रेजेंट होगा. ठीक है, हम उसका वैल्यू देख लेते हैं कि लेट्स से जब भी हम L की बात करते हैं
For example, when L is equal to 0, so this represent S orbit. When L is equal to 1, so this represent P orbit. When L is equal to 2, it represent D orbit, and when L is equal to 3, it represent F orbit. And again it can go further on and on, but हमको यहाँ पर फिलहाल फर्स्ट 4 के याद रखने हैं. So L is equal to 0, 1, 2, 3, and it will be like S, P, D and F orbits will be given. Now लेट्स से हमने ये एक ऑर्बिट है, ये सबसे पहले हमने एक शेल आइडेंटिफाई किया, दैट इज यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1, दिस वन इज n इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 3. तो हमने सबसे पहले एक आइडेंटिफाई किया कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में. अब थर्ड शेल होने के बाद में वो कौन से ऑर्बिट में वो हम पता करेंगे. सो लेट्स से यहाँ पर थर्ड शेल में इट कैन हैव वैल्यू अप टू 0 to n-1, मतलब वैल्यू जो पॉसिबल है दैट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 ऑल्सो. मतलब ये S में भी हो सकता है, P में भी हो सकता है या D में भी हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, सो ये सब प्रोबेबिलिटी है. विल टेक एग्जांपल एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर और उसके बाद में हमको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. सो दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर. नाउ लेट्स सी थर्ड क्वांटम नंबर विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो इट इज मैग्नेटिक क्वांटम number which is given by small m, and this value actually gives you information. m का value हमको ये बताएगा, gives information about orbitals inside the atom. अगर एक एटम है, सबसे पहले हमने निकाला कि कोई भी एक एटम होगा उसमें कौन सा शेल होगा. लेट्स गो बैक हियर. सो यहाँ पर सबसे पहले हमने शेल की वैल्यू निकाली, जहाँ पर हमने एग्जांपल ले लेट्स से वो थर्ड है. उसके बाद में हम देखेंगे ये शेल में जो पॉसिबल वैल्यूज है उनमें से कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, दैट इज एसपीडी, या एसपीडी में से कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है. अब एसपीडी में लाइक एस में तो सिर्फ सिंगल ये ब्लॉक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, बट पी में यू हैव 3 ऑर्बिटल एंड इन डी वी हैव 5 ऑर्बिटल. इन सब में से लाइक वेदर इट इज प्रेजेंट इनटू एस, पी और डी, ये वैल्यू हमको एल से मिलता है. अब एल के अंदर भी लाइक अगर लेट्स से पी या डी है तो उस केस में मल्टीपल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, तो दैट कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो इसीलिए हम कहते हैं दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज ऑलवेज इक्वल टू -L 2 + L. ठीक है, दैट मीन्स लेट्स से जैसे हमने L के वैल्यूज लिखे थे, लाइक L इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज s ऑर्बिटल. So value of m here. So now let's see that what will be the value for different value of L. What will be the value of m for different values of L. So let's say अगर L का वैल्यू हमने 0 लिखा है जो कि s ऑर्बिट था, then L का वैल्यू हमने 1 लिखा था which was P, then L is equal to 2 which was D and L is equal to 3 which was F. So इन सब के लिए हम देख लेते हैं m का वैल्यू क्या होगा. So when it is s, so it is -0 to 0, that is 0. तो here we will have only one value which is 0. इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा. So for first one that is -0 to 0, so in this case the value will be only 1 और इसका होगा वैल्यू 0. Now let's see L का वैल्यू जब हम 1 ये फॉर्मूला में पुट करते हैं, so it is -1 2 +1, so it will give you 3 values which is -1 0 and +1. So let's say it is -1 0 and +1, and that is why in P we have 3 different orbital. In case of D we will have -2 to +2, that means total we will have 5 different orbitals. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 -1 0 +1 and +2, and finally for F we will have from -3 to +3. So total we will have 7 values. Here it is 6 and then 1 7. So -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3. सो ये हमारे डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज हैं कि अगर हमको ऑर्बिट भी पता चल गया, सबसे पहले हम शेल पता करेंगे फिर ऑर्बिट, एंड नाउ वी विल फाइंड दी ऑर्बिटल. एंड फाइनली कि हमको पता है दैट एक ऑर्बिटल में लाइक इनसाइड एन ऑर्बिटल वी कैन हैव 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन. तो अब इन दोनों में से भी कौन से पोजिशन पे वो प्रेजेंट है वो भी हमको फाइंड आउट करना है, एंड दैट कैन बी गिवन बाय द नेक्स्ट क्वांटम नंबर विच इज द फोर्थ वन विच इज कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर, which is given by small s. So spin quantum number small s, so this gives you about the spin of the particular or angular rotation. It will give you about information about the spin of the electron कि वो clockwise घूम रहा है या anti clockwise घूम रहा है. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं gives information about
spin of electron in an orbital. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से कि हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक हम ले लेते हैं यहाँ पर. सो एक ऑर्बिटल के अंदर डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली घूमेगा विच विल हैव अपर एरो एंड वन विल मूव नेगेटिवली विच विल हैव अ डाउनवर्ड एरो. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट S इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस और माइनस m. दैट इज फॉर एवरी ऑर्बिटल इट विल हैव प्लस एंड माइनस हाफ. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स से दिस इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू प्लस 1/2 और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपर एरो एंड माइनस 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं डाउनवर्ड एरो. सो दीज आर द टू वैल्यूज फॉर स्पिन क्वांटम नंबर. सो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द position, exact position of an electron which is present inside the atom. Now let's take one example. अब ये चारों values अगर हमको याद रखना है, so we can remember this rule, this term that is NL raised to M or S. ठीक है, that means जो भी हमको यहाँ पर अभी configuration दिया होगा उस टाइम पे वी हैव टू रिलेट लाइक नंबर्स बाय n, देन उसका जो भी ऑर्बिट होगा बाय s और जो उसका एक्सपोनेंट दिया होगा हमको कॉन्फ़िगरेशन का दैट वी हैव टू रिलेट विद मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल, तो उससे ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा. सो लेट्स से वी आर टेकिंग 3s2. सो ये हमारा सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हमने ले लिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब इसके लिए पहले हम क्वांटम नंबर्स निकालते हैं, चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालते हैं. Now if we'll compare this term with this box, so here you can see in place of n we have 3, in place of s we have in place of l we have s. तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं that n is equal to 3, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में प्रेजेंट है. then l is equal to s. that means अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे s के लिए, the azimuthal quantum number is 0. And finally this 2 exponent will give you value about m and s, magnetic as well as spin quantum number का वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा. सो हमको पता है दैट l के लिए m का वैल्यू जो होता है वो -0 to +0 होगा. सो हियर इन दिस केस बिकॉज ये s है, सो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा वो 0 होगा, उसका वैल्यू जो होगा 0 होगा बिकॉज s में सिर्फ एक ही, यहाँ पर हम देख सकते हैं या दिस वन, दैट s में हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है दैट इज सिंगल ऑर्बिटल एंड उसका जो वैल्यू होता है दैट इज हियर यू कैन सी इट इज 0. सो अब हम वापस चलते हैं, ये रहा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड फाइनली वी हैव L, फाइनली वी हैव S विच इज स्पिन क्वांटम नंबर. सो अगर हमारा पहला इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में बन जाएगा, लेट्स से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक हमको ये वैल्यू मिल चुका है. अब एक्सपोनेंट में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स वी हैव टू फिल 2 इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस ऑर्बिटल. तो एक हमने अपवर्ड ले लिया और दूसरा हमने ले लिया डाउनवर्ड. सो डेफिनेटली S का वैल्यू जो होगा, ये हम लास्ट वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा -1/2 बिकॉज पहले वाले के लिए इट इज ऑलवेज +1/2 एंड फॉर द सेकेंड वन इट इज -1/2. सो इन दिस मैनर लाइक फॉर द गिवन 3s2 वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज 3 then 0 and then -1/2. So इस तरीके से फॉर गिवन एनी कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एनी गिवन कॉन्फ़िगरेशन वी कैन फाइंड आउट दी 4 क्वांटम नंबर्स. अब एक एग्जांपल हम देखते हैं इन रिवर्स मैनर कि हम एक पहले 4 क्वांटम नंबर ले लेते हैं और उसके बाद में हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखते हैं. सो लेट्स से इन दिस केस वी हैव n इज इक्वल टू लेट्स से 4, l इज इक्वल टू लेट्स से 2, m +1 एंड s -1/2. ये हमारा 4 क्वांटम नंबर्स हो गए. सो अब स्टार्ट करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की. लाइक लास्ट इस इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि कौन से ऑर्बिटल में या कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है. सो हियर वी कैन राइट लाइक इन दिस फॉर्म. तो सबसे पहले n और l के वैल्यू को लिख लेते हैं. सो n मीन्स इट विल बी 4th शेल और ऑर्बिट अगर हम कंपेयर करें सो l का वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 मीन्स s, 1 means P and 2 means it is D. So definitely it will be 4D. ठीक है, या यहाँ तक हो गया हमारा. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं. सो अब ये एक्चुअली अगर हमको M और S का वैल्यू सॉल्व करना है तो 4D जैसे ही हो गया. आप ये अपना ऑर्बिटल का डायग्राम बना लो, वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है. कि लेट्स से हमने ये डायग्राम बना लिया 4D का. अब 4D में हमको वैल्यू अगर हम लिख दें सो इट इज़ -2, -1, 0
देन +1 एंड देन +2। ये हमारे पांचों वैल्यूज हो गए डी ऑर्बिटल के। अब इसमें लेट्स सी हमारा +1 मतलब ये रहा हमारा ये पोजीशन पे। सो दिस पोजीशन इफ यू विल सी, ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाला प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पर फाइनली ये हमारा ऑर्बिटल है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, और फाइनली हमारे पास है -1/2 इन द सेंस द इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट हमको पता है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे ही नहीं आता है। सबसे पहले हमको ये सारे ऑर्बिटल को फिल करना पड़ेगा सिंगल सिंगल, और फिर उसके बाद में अगर हमको यहाँ तक पहुँचना है तो दैट मीन्स वी हैव टू फिल इट टिल योर लाइक पेयरिंग हमको करना होगा टिल +1 डी ऑर्बिटल के लिए। सो इट विल बी लाइक 2 then 2 4 electron, 2 6 electron, 2 8 electron and 1 9. So here we can say it will become 4d9. So this will become the configuration for n is equal to 4, l equal to 2, m equal to +1, s equal to -1/2, and this will give you 4d9 configuration. So in this manner, with the help of quantum mechanical model and quantum numbers, we can easily calculate the position of electron inside the atom. That's it for the video guys. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इसे लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने केमचैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक तो अभी इसे लाइक कीजिए, अपने दो दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। इफ दे आर वॉचिंग दिस ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो अवर पेज केमचैम। That's it for now. See you in the next video with a new topic. Take care. Bye bye. Thank you.